Now we shall see the frequency. We know omega is equals to 2 pi f. So f is omega upon 2 pi. Omega is already given 5 and 2 pi is as it is. So you can directly find out the answer. F is 5 upon 2 pi is the answer. The next most important is the speed of wave. The speed of wave is v is equals to omega upon k. Here we have seen the formula v is equal, you have to remember this, so put the value of omega and k. Omega is 5 and k is from the this equation, comparing equation k, x minus omega t, it's 20, so 1 upon 4 is 0.25 meter per second is the answer. So try to learn the way how to solve these kinds of questions based on the travelling wave. Now we shall see the next most important, what is the speed of wave. Dear students, if you throw a pebble or a stone in the pond, you will see waves propagate in it. What is the speed of moving of wave from one place to another? It depends upon elasticity and inertia. I have already told you, for a wave to propagate, elasticity should be having and inertia should have in a medium. Medium have elasticity so that medium particles try to come back to its original position if you displace them. Inertia, they keep on moving. I have already taught you. The speed is elastic property and inertial property and root. So this derivation is not in your syllabus. Again, you remember the speed of a wave depends upon both elastic and inertial property. So take a ratio. You also have to remember this formula for a string. रस्सी पे अगर कोई string है, for example it is a wall and here there is a string and a person is there which is pulling this rope and or who is moving this rope, with what wave, speed the wave will move depends upon two things. One is the tension and another one is the mass per unit length. Dear students, this tension is what related to the elastic property, and inertial mass is inertia is due to mass, so mass is related to inertial property. Remember, the speed on a stressed string is due T upon mu, where mu is not the mass but mass per unit length. Now let us come on, what is the speed of wave on in solids. It is again elasticity property and inertial property. Elasticity property is, there are three kinds of elasticity you have studied: Young, bulk and shear modulus. In solid we talk about Young modulus, in liquid or gases means fluids we talk about bulk modulus. So again elastic property is related to these y and b, and inertial property is related with the rho, where what is rho? Rho is the density. So remember, the speed of sound in liquids is represented by v is equals to root b upon rho. It was given by Newton. B is bulk modulus and B is related to the pressure. How? You see, Newton calculated the speed of sound. So I will tell you, first see what is Boyle's law. PV is equals to constant for isothermal process. So if you try to find out the bulk modulus, you will get it is equals to P. We have studied it because when we just differentiate this equation and finally we get the bulk modulus, formula is equals to P, pressure. So you can put P in place of B. P is related to their elastic property and rho is as it is the inertial property term. एक्चुअली न्यूटन टोल्ड कि जब कोई साउंड ट्रैवल करती है किसी गैस में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, साउंड का प्रोपोगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग, देयर आर टू फ्रेंड्स, एक कोई पर्सन यहाँ पर है फ्रेंड ए फ्रेंड बी, और ये इफ़ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ही इज़ लिसनिंग हिज वॉइस. तो क्या होगा कि बीच रास्ते में जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे. अब जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो न्यूटन ने माना कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एयर का टेम्परेचर सेम रहेगा. तो इन्होंने क्या किया कि इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बल्क मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो पी आएगा निकल करके. ठीक है, आप लोगों ने पहले भी देखा है चैप्टर आई इन थर्मोडायनामिक्स. और व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर देन इट कम्स 280 मीटर पर सेकेंड. न्यूटन की कैलकुलेशन से 280 मीटर पर सेकेंड इट वाज द स्पीड ऑफ साउंड.
लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली देखा गया तो साउंड की स्पीड ज़्यादा थी, 280 नहीं थी। तो इट वाज करेक्टेड बाय लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, जिससे क्या होता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, यहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता हीट को एक्सचेंज करने का, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बट इट इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोगों ने एक चीज़ समझी होगी कि देखिए, आई हैव टोल्ड यू कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, इफ़ यू विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, ओके, एडियाबैटिक कर्व और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, it is equals to gamma, right? So आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी गामा कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी गामा पी, गामा टाइम्स पी, ओके। यू कैन रिलेट जस्ट दीज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। गामा वैल्यू फॉर एयर, क्योंकि एयर में हमारे पास डायटोमिक गैस मोस्टली नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए यानी डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। आप गामा की वैल्यू पुट करोगे तो 331 मीटर पर सेकेंड आएगी, जो कि 332 रियल के आसपास थी। इसलिए आज हम लोग जो बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ वॉट, इट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ एज पर द लैप्लास करेक्शन। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या समझना था इसमें कि किसी भी फॉर एनी वेव traveling, it is having speed, so speed is given by elastic property upon inertial property, and एक रस्सी में स्ट्रेच स्ट्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंशन, बिकॉज रस्सी में जब टेंशन होगा, तनाव होगा, तभी रस्सी में खिंचाव है। मान लीजिए आपने इस रस्सी को खींचा है तो रस्सी में एक सिचुएशन होगी कि रस्सी अपनी ओरिजिनल स्टेट को लाना चाहती है, यानी उसके पास इलास्टिसिटी है। इनर्शियल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द मास पर यूनिट लेंथ फॉर द स्ट्रिंग। अब इसी को हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी को सॉलिड्स में और गैसेस में गामा और पी में कन्वर्ट किया, और इनर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद रो से रिप्रेजेंट कर दिया। न्यूटन ने माना कि व्हेन साउंड प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम, तो जब साउंड प्रोपेगेट करती है तो उसमें कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, और उन्होंने बी बल्क मॉड्यूलस को पी के इक्वेट किया, ओके। ही फाउंड आउट द बल्क मॉड्यूलस वैल्यू इज इक्वल्स टू पी, देयर शुड बी नो एनी कन्फ्यूजन, ओके। In thermodynamics, when you find out the slope of isothermal curve, then you get the slope is equals to the modulus, which is b, and it is equals to the pressure p. So here speed comes out to be root p upon rho. Put the values, you will get 280 meter per second, but the scientist Laplace told it is an adiabatic process, so temperature is not constant, hence he multiplied by gamma, value is 1.4 for nitrogen diatomic gas mostly, it is nearly to the true value. What are the factors which changes the speed of sound? Temperature increase, speed also increase, right? So in winter speed of sound is in air is less, in summer it is more. For every 1 degree rise in temperature, sound increases by 0.61 meter per second. With humidity, एयर में वाटर वेपर अगर होंगे तो क्या होगा, क्योंकि वाटर वेपर, एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट नोट ये कि वाटर वेपर हल्के होते हैं, नाइट्रोजन गैस भारी होती है। अब जब वाटर वेपर आ जाएंगे तो ह्यूमिड एयर कैसी हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ड्राई एयर से। उल्टा है, आप लोग ये सोचोगे कि अगर एयर में मॉइस्चर है तो हवा हल्की की जगह आपको ये लगेगा कि हवा भारी हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, नहीं। एटमॉस्फेयर में, एयर में अगर H2O मॉलिक्यूल आ गए हैं तो वहाँ एयर कैसी हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, क्योंकि एयर का जो अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन गैस से हल्के होते हैं, N2, राइट। इसीलिए होगा क्या कि डेंसिटी कम हो गई तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर बिकॉज द डेंसिटी रो डिक्रीज्ड, ओके। Now let us move ahead. What is pressure? Here pressure, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को चेंज करने में स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि सर यहाँ ना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ डेंसिटी भी बढ़ेगी, और दोनों बढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगी स्पीड, ठीक है, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी, क्योंकि
अब यहाँ पर एक पॉइंट ये और आता है कि क्या स्पीड डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फॉर्मूला तो था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा अपॉन पी, या ये गामा सॉलिड के लिए यूज़ कर रहे थे और साउंड में, और अगर सॉलिड की जगह साउंड की स्पीड गैसेस में या लिक्विड में देखनी है तो वो होगा बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। तो क्या यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी इंक्रीज सो स्पीड डिक्रीजेस? नो, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कहीं डेंसिटी बढ़ेगी मान लीजिए तो ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मिलियन टाइम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसकी कंपैरिजन में, एयर वगैरह के कंपैरिजन में। तो एयर के लिए तो हम लोग वैसे भी गामा नहीं निकालते। अभी होगा क्या है कि सॉलिड में वाई ये दिस विल डोमिनेट इन सॉलिड, the gamma dominates then density, so what happens, sound की speed कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर साउंड में उसमें सॉलिड्स में रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है, वो भी अपना इफेक्ट देगा, लेकिन उसके इफेक्ट को अंडर्स को माइन कर दिया किसने, गामा ने, क्योंकि गामा पे मेजरली वो डिपेंड कर रहा है। तो साउंड की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। वन नोट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।